Hare Krishna. Today we are reading from 4th chapter of Srimad Bhagavad Gita, verse number 2. Evam parampara praptim imam raj rishyo vidhu sakale neham mahata yogo nashtah parantapa. Evam parampara praptim imam raj rishyo vidhu sakale neham mahata yogo nashtah parantapa. एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपा. Evam, thus parampara, by disciplic succession, praptam, received, imam, this science, rajrishayah, the saintly kings, viduhu, understood, sa, that knowledge, kalena, in the course of time, iha, in this world, mahata, great, yoga, the science of one's relationship with the Supreme, nashtaha, scattered, parantapa, O Arjuna, subduer of the enemies. Translation. This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time the succession was broken, and therefore the science as it appears to be lost. Purport by His Divine Grace Srila Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Purport. It is clearly stated that the Gita was specially meant for the saintly kings because they were to execute its purpose in ruling over the citizens. Certainly Bhagavad Gita was never meant for the demoniac persons who would dissipate its value for no one's benefit and would devise all types of interpretations according to personal whims. As soon as the original purpose was scattered by the motives of the unscrupulous commentators, there arose the need to reestablish the disciplic succession. 5,000 years ago it was detected by the Lord himself that the disciplic succession was broken, and therefore he declared that the purpose of the Gita appeared to be lost. In the same way, at the present moment also there are so many editions of the Gita, especially in English, but almost all of them are not according to authorized disciplic succession. There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the Supreme Personality of Godhead Krishna, although they make a good business on the words of Sri Krishna. This spirit is demonic because demons do not believe in God but simply enjoy the property of the Supreme. Since there is a great need of an edition of the Gita in English, as it is received by the Parampara, disciplic succession system, an attempt is made herewith to fulfill this great want. Bhagavad Gita, accepted as it is a great boon to humanity. But if it is accepted as a treatise of philosophical speculations, it is simply a waste of time. Jai. We are grateful very grateful unto Srila Prabhupada that he has given us this wonderful translation and purport as it is of Srimad Bhagavad Gita. We see that Srila Prabhupada is mentioning in this verse, in the purport of this verse, that there are so many correct editions of Bhagavad Gita, but no one is speaking what the Lord is speaking. Instead, they are using Bhagavad Gita to propagate their own philosophy, what they think it should be. So this is wrong. This is a waste of time. So anything, if it is not connected to Krishna, it is a waste of time. So in that category, even Gita comes. Even the words of Lord himself, if they are not being used for rekindling our relationship, re-establishing our relationship with the Supreme, then it is also a waste of time. So it's not just has to be like, okay, Gita is there and I read it and I become close to God. No, it is Gita, message of the God, accept as it is. What the Lord was saying to Arjuna in the battlefield, with the same meaning, with the same interpretations. We do not have to interpret in some other way that no, Bhagavad Gita is like refers to the Kurukshetra, refers to the body, Arjuna is the soul, Krishna is supreme soul, or something like that.
तो ये सब फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस हैं, ये सब मैं ना पढ़ के हमको गीता को एज इट इज यथारूप लेना है। कुरुक्षेत्र एक जगह है भारत में जहां पे दुर्योधन और पांडवों में युद्ध हुआ था 5000 साल पहले, उसका कोई सिंबॉलिक मीनिंग नहीं है, सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशंस नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं इसका सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है, तो वो जो है बकवास कर रहा है, वो हमारा समय व्यर्थ कर रहा है। सो भगवद गीता एज इट is a great boon to humanity, but if it is accepted as a treatise of philosophical speculation, it is simply a waste of time. और जब हम अध्यात्म में अगर आप इस पथ पे हैं, अग्रसर हैं, तो क्यों अपना समय बर्बाद करना चाहें? यद्यपि क्यों अपना समय बर्बाद करना चाहें, जबकि हमको चाहिए कि हम ऐसे सही जगह पे जाएं जहां पे हमको सही नॉलेज मिले। अगर कोई व्यक्ति कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है या फिर कोई पढ़ाई करता है, कोई मेडिकल डिग्री लेना चाहता है, तो आप क्या मेडिकल डिग्री ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो कोई सड़क छाप यूनिवर्सिटी हो और वो कहे कि हम आपको दिखा देंगे मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑपरेशन कैसे करना है, सब कुछ कैसे करना है, कहते कि लेकिन आप रिकॉग्नाइज्ड हो? नहीं, हम रिकॉग्नाइज नहीं, हम अपना खुद का ज्ञान देते हैं। तो क्या आप ऐसे मेडिकल स्कूल में जाएंगे, या फिर ऐसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, या फिर ऐसे स्कूल में जाएंगे जो कि एनसीईआरटी की बुक्स को लेके, उस हिस्ट्री को लेके खुद के मन से मन घड़त उसमें कहानियां जोड़ दे और मन घड़त उसकी इंटरप्रिटेशन दे? तो क्या आप ऐसे स्कूल में जाके दाखिला लेंगे, या फिर अपने किसी मित्र को या बच्चों को उधर ज्ञान अर्जन करने के लिए भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, कदापि नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो निरर्थक है, वह वेस्ट ऑफ टाइम है। हालांकि बुक वो कोई से भी यूज कर रहा हो, एनसीईआरटी यूज कर रहा हो, चाहे कुछ यूज कर रहा हो, लेकिन ज्ञान वो क्या दे रहा है वो महत्वपूर्ण है। क्या वो सही ज्ञान है, क्या वो रिकॉग्नाइज्ड ज्ञान है? इसी तरह हमको भगवत गीता देखना चाहिए कि भगवत गीता, हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं, इनको पढ़ने से अवश्य कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ ज्ञान मिलता है, लेकिन हमको सही ज्ञान लेना है। हमको किसी मन घड़त किसी के कहानियों में नहीं पढ़ना है, हमको सही ज्ञान लेना है कि जो भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ऑथोराइज जो दे रहे थे अर्जुन को, वही ज्ञान हमको लेना है। और उसके लिए हमको श्रील प्रभुपाद ने दिया है दिस वंडरफुल बुक भगवत गीता एज इट इज, विच वी ऑल शुड रीड। और दूसरी चीज, इस चैप्टर के अंदर में जो कि लिंक है पिछले 3rd चैप्टर से, क्या लिंक है? पिछला चैप्टर कर्म योग था, ये चैप्टर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। क्या लिंक है इसके अंदर में? बहुत सिंपल सा लिंक है, जो पिछले वर्ष में श्रील प्रभुपाद ने एलैबोरेट किया था कि भगवान ने ये ज्ञान क्षत्रिय को क्यों दिया, विवस्वान को क्यों दिया, किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं दिया, या फिर किसी वैश्य को क्यों नहीं दिया, शूद्र को क्यों नहीं दिया? तो इसके अंदर श्रील प्रभुपाद क्लियरली बोलते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, नहीं, वो जो ऋषि थे वो राज ऋषि थे, और दूसरा उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आम जन का कल्याण हो, उनका उत्थान हो। कल्याण सिर्फ ये नहीं कि गरीबी हटे और बीमारियां ना फैलें और सबका देखभाल हो, सब बढ़िया से इंद्र तृप्ति करें, नहीं, सब बढ़िया से रहें, खुश रहें, साथ ही साथ में सबका आध्यात्मिक उत्थान भी होए। तो उसके लिए उनको नॉलेज होना चाहिए, सबसे पहले तो खुद को नॉलेज होना चाहिए कि उत्थान कैसे करें, खुद अपनी लाइफ में वो प्रैक्टिस करने चाहिए। उसके बाद जब वो प्रिंसिपल समझें और तो उसको इस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्लीमेंट करें ताकि आम जन का भी उत्थान हो। तो उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता जो थी ये रॉयल ऑर्डर को दी गई थी। The executive heads of all states are intended to spread the science of Krishna consciousness so that the people may take advantage of this great science and pursue a successful path। ताकि, तो जिससे कि श्रील प्रभुपाद में कह रहे हैं कि रॉयल ऑर्डर को इसलिए दी गई थी ताकि वो आम जन का वेलफेयर तो करे ही, साथ में इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करे कि उनका स्पिरिचुअल पाथ पे भी प्रोग्रेस होता रहे। जो कि वर्ण आश्रम सिस्टम बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। वर्ण आश्रम सिस्टम जो है ये किसी कास्ट के बेसिस पे डिफाइंड नहीं है, ये इंडिविजुअल के गुण और कर्मों के बेसिस पे डिफाइंड है। जिस तरह की वर्तमान में अगर आप जाएंगे तो जज अगर कोई बनना चाहता है तो क्या ऐसा है कि भाई जज का बेटा जज बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज का बेटा है तो सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके गुण होते हैं, उसके कर्म होते हैं। गुण, उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, दूसरा उसका कर्म होना चाहिए कि उसने एग्जाम देके क्वालिफाई करे, नॉलेज लॉ की बुक पढ़े, डिग्री ले, और तब जाके वो एक प्रोसेस के द्वारा वो एक जज बन सकता है।
उसी प्रकार अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है तो सिर्फ ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन में उसके पिता एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो वो भी बन जाएगा, नहीं, उस व्यक्ति को भी अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, लिखाई करनी पड़ेगी और फिर मेहनत करके उसको परीक्षा पास करके ट्रेनिंग करके उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर के पद पे आता है। उसके बावजूद भी उसका कर्म डिफाइन करता है कि वो कितना समय एडमिनिस्ट्रेटर है कि नहीं है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर की पद प्राप्त करके भी उसके कर्म इस तरीके से हैं कि वो करप्शन कर रहा है या फिर उसको मैनेज नहीं कर रहा ठीक से, तो हम देखते हैं कि उसको उस पद से हटा दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। तो ये जब चीज, हालांकि ये सिस्टम वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा करप्शन है इसके अंदर, लेकिन ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार से जो वर्णाश्रम सिस्टम था वो भी एक सिस्टम था। जो ब्राह्मण जो की ड्यूटीज को फॉलो करता है उसको ब्राह्मण कहते थे, अदरवाइज अगर उसका कोई बेटा है, उसका भाई है, तो उसको कहते हैं ब्रह्म बंधु। तो उसी प्रकार से गीता जो है ये कोई स्पेकुलेटिव ट्रिटाइज नहीं है जो कि इनसिग्निफिकेंट मंडन स्कॉलर के लिए हो कि भाई सोचने के लिए, भाई फिलोसॉफिकली थिंक कर रहे हैं, उसका ये गोल नहीं है। इसका गोल है भगवान के निकट लाना, भगवान की भक्ति में हम सबको लगाना। तो पर्पस यहाँ पे भगवद गीता का क्लियर है, एकदम क्लियर इसमें लिखा हुआ है कि दिस सुप्रीम साइंस वाज रिसीव्ड थ्रू द चेन ऑफ डिसाइक्लिक सक्सेशन एंड द सेंटली किंग्स अंडरस्टूड इट इन दैट वे, but in course of time the succession was broken and therefore the science has appeared as it is appears to be lost। क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ सेंटली किंग, नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी किंग। तो सेंटली किंग्स मतलब कि वो खुद कृष्णा कॉन्शियस थे, वो खुद उनकी खुद की रुचि इसमें नहीं थी कि राजविलास में, भोग में, आनंद में उनकी रुचि हो, नहीं। अगर कोई व्यक्ति की रुचि इन सब चीजों में है तो वो राजा सही राजा नहीं है, वो उस राजा को हटा के हमको एक सेंटली राजा लेके आना चाहिए। The Gita was specially meant for the saintly kings because they were to execute its purpose in ruling over the citizens। और क्यों गीता को यूज करना है रूलिंग ओवर सिटीजन्स? ताकि सबका उत्थान हो, सबकी भलाई हो। उस प्रकार से so as soon as the original purpose was scattered by the motives of unscrupulous commentary, there arose the need to establish the disciplic succession। और 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण खुद आए, उन्होंने एस्टेब्लिश की और वो रीजन यहाँ पे बता रहे हैं। इसी प्रकार से वर्तमान समय में हम देखते हैं कि गीता का मूल सिद्धांत जो है वो खो रहा है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने यह पुस्तक भगवत गीता एज इट इज, हम सबके भले के लिए, हम सबके उत्थान के लिए उन्होंने यह पर्पट दिए, ट्रांसलेशन किया। हम सबकी भलाई इसमें है, ड्यूटी इसके अंदर में है कि हम इस पुस्तक का नित्य रूप से पाठ करें और सिर्फ पाठ ना करें बल्कि अपने जीवन में इसको अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करें? बाय चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्रा एटलीस्ट 16 राउंड्स एवरी डे। 16 राउंड्स हम एक दिन में नहीं कर सकते, एक बार में नहीं आ सकते, कोई नहीं, एक एक माला शुरू करें। शुरुआत में एक माला शुरू करें, 4 नियमों का पालन करें। 4 नियम कौन कौन से? मदिरापान नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, इंटॉक्सिकेशन मदिरापान में ही हो गया, नो इलिसिट सेक्स और नो गैम्बलिंग। उन सबका मतलब आप अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, तो ये सब चीज नहीं करनी, 4 नियमों का पालन करना है। माला हरे कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्ण का जप करना है, कीर्तन करना है। जप में 16 माला करने की कोशिश की जानी चाहिए। शुरुआत में हम 1-2 माला से शुरू करें और भगवत गीता का और बाकी जो पुस्तकें हैं इनका नियमित रूप से पाठ करें। रोज आधा घंटा 20 मिनट अवश्य है, अवश्य पाठ करें। और इसके अतिरिक्त हम जो भी भोग खाते हैं, जो भी प्रसाद पाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, उसको लेने से पहले उसे भगवान को अर्पित करें। अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है कि आप भगवान के सामने स्वयं जाके जैसे मंदिर में अर्पित करें अपने घर में फोटो के सामने, तो कोई छोटी सी फोटो रख सकते हैं अपने जेब में, जब भी भोजन करें तो उस समय अर्पित करें भगवान को। या फिर भोजन लेने से पहले एटलीस्ट मन के अंदर में कोशिश करें कि आप मन में भगवान को वो अर्पित कर रहे हैं वो भोजन। ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जीवन शुद्ध होगा, हमारी चेतना शुद्ध होगी, हम अपलिफ्ट होंगे और हम कृष्णा कॉन्शियस होंगे। ये आश्वस्त हमें मिलता है भगवत गीता से और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के प्रोसेस से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।